Okay, well, the chapter number 8, that is the hack driver. This is very interesting chapter, and I hope you will like this chapter and you will enjoy it also. In this chapter, there is a lawyer, young lawyer, who comes to a village to serve a summon on Mr. Lutkins. मिस्टर ल्यूटकिन नाम का एक व्यक्ति है जिसको कि कोर्ट का आदेश देना है। सम्मन बोलते हैं कोर्ट के आदेश। उसमें उसकी कुछ गवाही है जिसमें उसको हाजिर होना। But he was not coming to the court. That is why this young lawyer has been sent to his village to give him summon and fetch him to the court. सम्मन दे करके उसको कोर्ट तक लाने का काम उसको दिया गया। This is the duty of the young lawyer, and that is why he has been sent to his village. उसके गांव उसको भेज दिया गया। So when he goes to his village to find Mr. Lutkins, that time he meets a hack driver. हैक ड्राइवर मतलब वो टमटम गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति। तो he meets there a hack driver who was very friendly by nature and he helps him a lot, this young lawyer, to find Mr. Lutkins. In return, he takes or charges some money also. In spite of that, the young lawyer thinks that he is a very good and friendly person because he is spending his time. So that is why he should have some money also. Otherwise, how he will arrange his bread and butter? So this young lawyer has no any complaint against this hack driver. Rather than he is happier and very enjoying also so much in this surrounding of village because he has come from towny area. But the question arises here, does he find Mr. Lutkins? क्या इस गांव में आकर उसको ल्यूटकिन से मुलाकात होती है, उससे वो मिल पाता है? हु इज मिस्टर ल्यूटकिंस? आखिर ये ल्यूटकिंस है कौन? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए दिए जा रहे हैं एंड यू विल फाइंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस स्टोरी. So the theme I have told you, that a young lawyer has been sent by the court by a firm to the village of Mr. Lutkins because he is a witness of any incident and he must be present over there. But in spite of so many instructions and command of the judge, he was not being present there. So at last, this young lawyer has been sent to bring him. And when he comes there, he meets a hack driver who helps him and charges also some money, but he is helping, so he will take some. And there are two questions: does he find Mr. Lutkins or not, and who is Mr. Lutkins? So we will see it in the story. तो स्टोरी हम लोग स्टार्ट करें. ओके. द यंग लॉयर टेल्स. हाँ बोलो. Does anyone want to say something? No. In this story, the lawyer tells us that after graduating with honors, he became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Magnificent law firm का मतलब आपको मालूम है कि जब आप किसी फील्ड में फ्रेशर होते हैं तो यू हैव टू गो अंडर ट्रेनिंग ऑफ एनी सीनियर पर्सन. तो ही इज ऑल्सो वेरी. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे कि पहला वर्ड है लॉयर, LAWYER, लॉयर. उसके बाद एडवोकेट. एडवोकेट वर्ड भी आपने सुना होगा. वन मोर वर्ड, दैट इज बैरिस्टर. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इन तीनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस? लॉयर किसको कहते हैं, बैरिस्टर किसको कहते हैं, और एडवोकेट किसको कहते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. हाँ.
And barrister? Okay, who replied it? Aryan. Very good. Your answer is quite correct. As Aryan has discriminated between these two words, lawyer and advocate, I appreciate you for your effort and for your information too. Your information is quite correct. A person who has the degree of law but he is not practicing or he has not been enrolled in bar association. जब आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन रजिस्टर्ड यू विल बी कॉल्ड ओनली अ लॉयर. आप लॉयर ही रहेंगे. और उसके बाद जब आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके कुछ सीनियर होने के बाद आपको केस मिलने लगेंगे, आप केस लड़ने लगेंगे अपने बल पे, तो यू विल बी कॉल्ड एडवोकेट. नाउ बैरिस्टर. बैरिस्टर किसको बोलते हैं? तो लॉयर एंड बैरिस्टर बोथ आर द सेम. लॉयर और बैरिस्टर दोनों सेम चीज. जो लोग इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेते थे या लेते हैं, ऑल दोज पर्सन्स, लॉ एस्पिरेंट्स हु टेक डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड, दे आर कॉल्ड बैरिस्टर. जैसा आपने देखा होगा महात्मा गांधी वाज अ बैरिस्टर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ही टुक द डिग्री और फ्रॉम इंग्लैंड. Jawaharlal Nehru was also a barrister. It means he also took the degree from England. तो जितने भी लोग इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेते हैं उनको हम लोग बैरिस्टर कहते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब आप लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बीच में क्या अंतर है ये समझ. So he says that after graduating his honors, he became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. यानी एक लॉ कंपनी में वो क्लर्क का काम करने लगा, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क. एंड दैट इज व्हाई ही वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स. वो क्लर्क है तो वो चाहता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह उसको तैयार करने का मौका मिले. लेकिन जब आप बहुत जूनियर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो इतनी आसानी से आपको ये सारे काम नहीं दिए जाते. तो अभी उससे वैसे काम करवाए जा रहे हैं जिस काम को करने में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं हो. तो उसी में से एक काम है सबको सम्मान देना. वैसे लोग जिनको कोर्ट ने हाजिर करने के लिए कहा है बट दे आर नॉट अटेंडिंग और दे आर नॉट अपियरिंग इन द कोर्ट, तो कोर्ट जो है वैसे लोगों को सम्मान भेजती है और इसका काम है वैसे लोगों को सम्मान देना. ही सेज दैट लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. इस काम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसको लगता है कि ये बहुत ही गया गुजरा कोई डिटेक्टिव का जो काम होता है बिल्कुल उसी तरह से इसको काम दिया गया है और ये करने की इच्छा उसको कभी नहीं थी. टू completing or fulfilling his duty, he had to go to dirty and sordid corners of the city to seek out his victims. इस काम को करने के लिए उसको शहर के कई गंदे इलाकों में जाना पड़ता है जहाँ पे वैसे लोग रहते हैं और ये करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Some of the larger and more self-confident ones even beat him up. कई बार तो इस चक्कर में उसकी पिटाई भी हो गई. He had been beaten by such victims. क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग क्रिमिनल ग्राउंड बैकग्राउंड के होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं कि वो क्या करें. So he hated this unpleasant work and the side of the city life it revealed to him. So he says that he does not like this work. It is only his compulsion that he is still in the field. He wanted to be something else, but he has become something different, and it is his compulsion. And he also does not like this city life. He even considered fleeing to his hometown. कई बार उसने सोचा है कि वो अपने होम टाउन अपने घर चला जाए, where he could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. जहाँ पे जाकर खुद वो लॉ की प्रैक्टिस करे और इस तरह की ट्रेनिंग की उसकी कोई जरूरत ना पड़े. लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली. आपको अगर एक सफल लॉयर एडवोकेट बनना है तो आपको किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती. So he rejoiced one day when they sent him out 40 miles in the country to a town called New Mullion.
तो एक दिन की बात है कि उसको सम्मन देने का काम तो दिया ही जाता है. तो one day again he was given the same work, but he was enjoying this work. He was very happy to have this work in his hand because he was sent in a village area that was 40 miles away from his place, and he always wanted to enjoy the village life. And this is a very small town or village type area, you can say. That is the name of that place is New Mullion. उस जगह का नाम है न्यू म्यूलियन. टू सर्व समन ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर ल्यूटकिंस. वहां जाके उसे एक आदमी को सम्मन देना है और उसको लाना है जिसका नाम है ओलिवर ल्यूटकिंस. ही सेज दैट he needed this man as a witness in a law and he had ignored all the letters. उस आदमी की जरूरत है गवाही के रूप में, उसकी गवाही होनी जरूरी है. और इससे पहले भी many times letters have been sent to him but he always ignored. कई बार उसको खत भेजे जा चुके हैं मगर उसने हमेशा ही इग्नोर किया है. तो इसलिए अब पर्सनली इन पर्सन किसी को जाना होगा और उसको लेकर के आना होगा. सो इस उद्देश्य से वहां से वो चलता है. एंड व्हेन ही गॉट अ न्यू मिलियन his eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. रास्ते में in the way he was thinking that the village will be very beautiful. He would enjoy over there. There would be greenery everywhere. ये सारी बातें वो सोच रहा था. But when he reached there, it seemed to him that all his thoughts were disappointed. उसकी सारी सोच जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुई. Its street were rivers of mud. उसने देखा कि उसकी जो सड़कें हैं वहाँ की वो बिल्कुल कीचड़ से सनी है. With rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any painted of sour brown or bare of any paint at all. और उसके किनारे किनारे लकड़ी की बनी हुई छोटी छोटी स्टॉल है जिसको हम लोग इधर के भाषा में कहें कि छोटी छोटी गुमटी है, जिसमें छोटे छोटे दुकान है और वो भी बहुत ही पुराने हैं, जो ढंग से पेंट किए हुए भी नहीं है. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. बस वहाँ का जो डिलीवरी मैन है उसको देख के उसको थोड़ा अच्छा लगा. He was about 40. वो लगभग 40 years old है. Red faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. उसका पहनावा जो है वो भी थोड़ा गंदा है लेकिन वो बहुत ही फ्रेंडली मैनर का मालूम पड़ रहा है. I told him to find a man named Oliver Lutkins. उस लॉयर ने उसको बताया कि यहाँ वो एक आदमी को ढूंढने आया है जिसका नाम है ओलिवर ल्यूटकिंस. जब उसने उस नाम को सुना तो उसने कहा, ल्यूटकिंस, आई saw him around here about an hour ago. मैं तो उसे जानता हूँ लुटकिंस को. I saw him only 1 hour ago. He was here. उसने कहा कि मैंने उसको 1 घंटे पहले ही यहाँ देखा है, वो तो यही था. हार्ड फेलो टू कैच, तो ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, वो एक जगह तो टिक कर रहता ही नहीं. समटाइम्स here, sometimes there, sometimes nowhere. So it is very difficult for you to find him. And he is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. और फिर वो गेस करके अनुमान करके बताता है कि इस समय जरूर वो पोकर का गेम खेल रहा होगा. पोकर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग. पोकर जो है एक तरह का जुआ है, गैम्बलिंग. तो वो कहता है कि जरूर वो फ्रिट्स के शॉप में, फ्रिट्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी दुकान में पोकर खेलने के लिए गया होगा. I will tell you, why is there any hurry about locating Lutkins? वो कहता है कि मैं अगर वो मिलेगा तो मैं बताऊंगा. Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. लॉयर बताता है कि हाँ वो आज ही की ट्रेन से वापस लौटना चाहता है. आफ्टरनून में एक ट्रेन है, उसको वापस लौटना होगा. तो दिस मैन सेज आई एम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. वो उसको ये भी बताता है कि उसका मिलना उससे बहुत जरूरी है और ये सीक्रेट भी है. I will tell you what I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. तो वो हैक ड्राइवर उसको कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है
उसके पास हैक है। उस हैक के जरिए वो उन सारे जगहों पे जाएगा। ही विल गो टू ऑल प्लेसेस वेयर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ल्यूटकिंस। जहां पे भी ल्यूटकिंस को होने की संभावना है, वो उन सारे जगहों पे जाएगा और उसके साथ उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। और उसको मालूम भी है कि कहाँ कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो उसको जानता है। ये बात सुनकर वो लॉयर बड़ा खुश होता है। He was so open and friendly that he glowed with the warmth of his affection. वो कहता है कि ये हैक ड्राइवर कितना फ्रेंडली है, and he is understanding the problem of that person. I knew, of course, that he wanted the business. Wanted the business means he wanted to make some money in return of his help. So, what is wrong in this? If someone is helping you and he has also his uh, bread and butter to earn, so how will he manage all that? For this, he has to take some charge for whom he is helping. तो लॉयर इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता कि अगर वो कुछ पैसे लेता है और बदले में उसकी मदद करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो उसके काइंडनेस पे बिल्कुल फिदा हो जाता है और उसको लगता है ये बहुत ही फ्रेंडली मैन है। ही वॉज रियली ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू द दिस फेलो। और उसको लगता है कि वाकई में पैसे का सही यूज होगा। वो जो पैसे इस आदमी को इसके मेहनताना के रूप में देगा वो बिल्कुल सही हाथों में जाएगा। लॉयर को इस बात का संतोष होता है। He managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. उसने कहा ठीक है, वो उसे हर एक घंटे के लिए $2 चार्ज करेगा। जितनी देर वो रहेगा तो घंटे के हिसाब से उसको $2 देने होंगे। और इतना कहने के बाद he brought from his house nearby a sort of large black box. वो पासी के घर से एक बड़ा सा लार्ज ब्लैक बॉक्स जो है वो लाता है। And he remarked, well, young man, here is the carriage. And his wide smile made him into an old friend. और उसने बाद उसको अपनी छकड़ा गाड़ी दिखाई, बोली कि ये मेरा कैरेज है। और इतना कह के वो मुस्कुराता है। These villagers are so ready to help us. The lawyer thinks कि गांव वाले लोग they are really very innocent and very soon they become ready to help anyone. But it is not realized in town. In town, we can see that everyone is busy in his or her life. No one has time for others. And this is the reason that no one wants to help anyone because their own life is very busy, full of hectic schedule, but it is not so in village. So lawyer is highly impressed by the nature of the hack driver. He had already made it his own task to find Oliver Luskins for him. यहाँ तक जो मैंने बताया सबको समझ में आ गई बात? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़े हम लोग? ठीक। Now he said that he does not want to interfere young fellow, but his guess is that he wanted to collect some money from Lutki. फिर वो कुछ गेस करता है और कहता है कि वैसे तो उसको इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि शायद लुटकिंस ने उससे कुछ पैसे लिए होंगे और उस पैसे उससे वो लेना चाहता। बट ही नेवर पेज एनीबॉडी अ सेंट। वो ये भी बताता है कि वो ऐसा आदमी है कि वो किसी को एक पैसा भी नहीं देता। भले ही आप ही से वो पैसा क्यों ना लिया हो, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं लौटाया। दिस इज हिज ट्रैक रिकॉर्ड, कह सकते हैं, यह उसका ट्रैक रिकॉर्ड। ही स्टिल ओव्स मी 50 सेंट्स ऑन ए पोकर गेम। फिर वो बताता है कि उसने उससे भी 50 सेंट्स उधार ले रखे हैं, उसको देने हैं। जब वो पोकर का गेम खेल रहे थे उस समय उसको 50 सेंट देने थे, जो आज तक उसने नहीं दिया। और वो अपने आप को कोसता है, कहता है कि ही वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। वो मूर्ख था कि उसने उसके साथ खेला, उसको नहीं खेलना चाहिए। ही इज नॉट रियली बैड बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। पर यह भी वो बोलता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसकी एक कमी है कि पैसे के मामले में वो थोड़ा अजीब है। वो अपना 1 रुपया भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। फिर वो लॉयर को सजेस्ट भी करता है कि जिस तरह से उसका पहनावा है, कपड़े उसने पहन रखा है,
और इसके साथ वो ढूंढने जाएगा तो वो समझ जाएगा और दूर से ही भाग जाएगा. So if he wants, he would go into Fritz and ask for him, and he can keep out of the sight behind him. इसलिए उसको सजेस्ट करता है कि जब फ्रिड्स के शॉप में वो उसको ढूंढने जाए तो लॉयर उसके साथ ना जाए, वो दूर में ही थोड़ा खड़ा रहे ताकि अगर वो वहां हो तो भाग ना पाए, और वो जाकर के वहां से पूछ करके इंक्वायरी करके उसको बता दे. अब ये बात लॉयर को अच्छी लगी, उसको लगा कि वाह, क्या सलाह दिया इसने. ही लव फॉर दिस, उसका उसने उसको और भी ज्यादा इंप्रेस कर. ही सेज दैट बाय हिमसेल्फ ही माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस. अब उसको लगने लगा कि अकेले शायद वो कभी भी लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाता. विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प ही वाज श्योर ऑफ गेटिंग हिज मैन. और जिस तरह से ये हैक ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए तैयार है और जितनी लगन के साथ वो मेहनत करके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अब इसका भरोसा बढ़ रहा है. एंड ही थिंक्स दैट नाउ ही वुड फाइंड हिम अनडाउटेडली. He took him into his confidence and told him that he wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled his case. जब उसको पूरा भरोसा हो जाता है उस आदमी पे तो वो रिवील कर देता है मैटर को कि आखिर वहां वो क्यों आया, और वो बताता है कि एक केस में उसकी गवाही है. बट ही इज नॉट अपियरिंग इन द कोर्ट इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग सो मेनी लेटर्स. he has ignored all that, so at last he has been sent to fetch him to the court. इसलिए अंत में उसको भेजा गया है उसको कोर्ट में लाने के लिए. अब ये बात उसने उसको बता दी जो पहले उसने नहीं बताया था. When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly. At the end, he hit him on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkins a little surprise. और जब पूरी बात वो हैक ड्राइवर सुन लेता है तो मुस्कुराते हुए वो लॉयर को कहता है कि चलो हम लोग लुटकिंस को सरप्राइज देते हैं, यानी उसको ढूंढ ही लेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट. ड्राइवर और दोनों जो है निकलते हैं. मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर call him Bill or Magnuson. His business is called William Magnuson Fancy Carting and Hack. लॉयर ने देखा कि जो लोकल लोग हैं वहां पे उस हैक ड्राइवर को कुछ लोग बिल के नाम से बुला रहे हैं, कुछ लोग उसको मैग्न्यूसन के नाम से बुला रहे हैं. और वो बताता है कि उसका जो बिजनेस है, जो काम वो करता है, इस वजह से उस बिजनेस का नाम उसने रखा है विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. कार्टिंग एंड हैकिंग. ऑल राइट बिल, शैल बी प्रोसीड टू फ्रिट्स. लॉयर उससे पूछता है चलो ये सब ठीक है, क्या हम लोग जल्दी फ्रिट्स के यहाँ पहुंच जाएंगे. कहता है यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. पूरी संभावना है कि लुटकिंस वहां पे आपको मिलेगा. प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, बहुत बड़ा पोकर गेमर है, बहुत पोकर खेलता है. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो उसकी खासियत बताता है कि लोगों को धोखा देने में उसका तो कोई जवाब ही नहीं है. बिल सेम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. और ऐसा लगता है कि बिल यानी कि जो हेड ड्राइवर है, भले ही ओलिवर जो है वो डिसऑनेस्ट है, मगर उसकी डिसऑनेस्टी पे भी वो उसको एडमायर करता है और उसको एक टैलेंट के रूप में बताता है कि ही इज टैलेंटेड फॉर डिसऑनेस्टी. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. और फिर वो ये भी कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो पुलिस में होता तो लुटकिंस को बहुत ही सम्मान पूर्वक पकड़ता और जेल में जब उसको डालता तो उसको काफी दुख होता. अब यह समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो उसकी तारीफ कर रहा है या उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कमियों के बावजूद भी वो लुटकिंस को काफी पसंद करता, ये हैक ड्राइवर. एनीवे, बातों बातों में बिल लेड हिम इनटू फ्रिट्स. हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे. बातों बातों में ही वो फ्रिट्स के शॉप पे पहुंच जाते हैं और जैसा कि तय हुआ था, लॉयर वाज स्टैंडिंग आउट ऑफ द shop and Bill went over there and asked Fritz if he had seen Lutkins around there. क्या उसने यहाँ लुटकिंस को वहां देखा है. Friend of his looking for him, said Bill cheerily. Fritz looked at him hiding behind Bill. उसके बाद फ्रिट्ज जो है वो बिल के थोड़ा पीछे रहा और he hesitated and then admitted yes he was in here a little while ago. Guess he has gone over to Gustav's to get a safe.
पहले तो थोड़ा वो हेजिटेट करता है लॉयर को देख के, लॉयर ऐसे थोड़ी दूरी पे खड़ा है लॉयर। उसके बाद वो बिल को बताता है कि हाँ थोड़ी देर पहले यहाँ वो था लेकिन अब वो नहीं है। और वो बताता है कि शायद वो गस्टफ्स के शॉप पे गया होगा सेविंग करवाने के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो बिल उसको कहता है कि ठीक है, अगर वो आता है तो तुम उसे जरूर बताओगे कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉप टू गस्टफ्स बार्बर्स। वहां से जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलता है दोनों जो है गस्टफ के शॉप में चले जाते हैं। बार्बर शॉप है वो, और वो एक बार्बर है। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड ही लिंगर्ड एट द डोर। और यहाँ भी बिल जो है वो पहले जाता है और लॉयर जो है वो बड़ा ही बाहर ही खड़ा रहता है। He asked not only the suite but two customers if they had seen Lutkins. उसने दुकान के मालिक से भी पूछा, दो अलग कस्टमर जो बैठे हुए थे उनसे भी पूछा कि क्या उन लोगों में से किसी ने लुटकिंस को देखा है। The Swede had not. He said angrily, I have not seen him and don't care to. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. वो गुस्से में आ जाता है जब उससे ये पूछा जाता है, तो वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और जल्दी उसके गुस्से का कारण भी पता चलता है। वो गुस्से में कहता है उसने उसको नहीं देखा है और अगर उससे वो मिले तो जरूर वो उसके $35 जो है उससे ले ले, जो उसने उससे उधार ले रखा। तो इससे ये पता चलता है कि ये ओलिवर लुटकिंस जो है वो लगभग सभी लोगों से कुछ ना कुछ बोरो करता रहता है और सारे लोग उससे परेशान हैं क्योंकि जिससे भी बोरो करता है उसको कभी वो रिटर्न नहीं करता। One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. वहां बैठे बहुत सारे कस्टमर में से एक कस्टमर बताता है कि शायद उसने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट से जाते हुए देखा था, जो होटल के साइड में एक रास्ता जाता है, वो शायद उधर ही उसी के डायरेक्शन में गया है। फिर यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तरह का टिप मिलता है जहाँ पे लुटकिंस के होने की संभावना है। देयर इज द पॉसिबिलिटी वेयर दे कैन फाइंड लुटकिंस। So you would be observing that wherever they are going, there are they are not finding Lutkins, but they are finding only tips by which they can catch Oliver Lutkins. लेकिन अभी तक उसको वो पकड़ नहीं पाए, अभी तक उनको सिर्फ टिप्स ही मिलता जा रहा है। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अगेन they climbed back into the hack and Will concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a save. और फिर बिल जो है वो बताता है, दोनों जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं, छकड़ा गाड़ी में, और बिल गेस करके बताता है कि यहाँ पे गुस्टफ के यहाँ उसका क्रेडिट खराब हो चुका है क्योंकि उसने बताया कि उसको $35 उससे लेने हैं, इसलिए जरूर वो अब ग्रे के शॉप में गया हो। ग्रे नाम का कोई बार्बर है, वो भी एक बार्बर शॉप है, अब उसको सेविंग करानी है तो वहीं गया हो क्योंकि यहाँ पे उसको क्रेडिट उसका खत्म हो चुका है। एट ग्रेज बार्बर शॉप दे मिस्ड लुटकिंस ओनली बाय 5 मिनट्स। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो फिर से क्या मालूम चलता है कि बस 5 मिनट पहले यहाँ से वो निकला है। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली आफ्टर द पूल रूम। अभी तुरंत निकला है और जरूर वो पूल रूम की तरफ गया हो। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट ब्राउट ए पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। आनंद फानंद में वो पूल रूम पहुंचते हैं और वहां भी पता चलता है कि यस ही वाज प्रेजेंट देयर एंड ही परचेज्ड अ पैकेट ऑफ सिगरेट एंड देयर आफ्टर वेंट अवे। एक पैकेट उसने सिगरेट का खरीदा और वहां से फिर वो आगे बढ़ गया। सो दे परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग। अब ऐसा लग रहा है कि आगे आगे ओलिवर लुटकिंस से पीछे पीछे बिल और ये लॉयर है और बस थोड़ी ही दूरी पर है, ऐसा लॉयर को लगता है क्योंकि जहां भी जाते हैं वो उनको यही इंफॉर्मेशन मिलता है कि बस कुछ मिनट पहले निकला, थोड़ी सी दूरी पर वो चल रहा है। लॉयर को ऐसा लग रहा है। Just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock। और इस तरह से 1 घंटे बाद 1 बज गए और उनको भूख भी लग गई। वो बिल जो है वो कहता है कि he was hungry but he had not so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। लेकिन लॉयर जो है वो अभी भी सोच रहा है
कितने पास होने के बावजूद भी उसे अभी तक लुटकिंस मिला नहीं, जो कि उसको लग रहा था कि शायद हैकर के साथ, वो हैक ड्राइवर के पास, सॉरी, हैक ड्राइवर के पास साथ रहने की वजह से वो बहुत जल्दी ही लुटकिंस को ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, अब भूख लग गई तो उससे पूछता है, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट? आई सजेस्टेड लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। तो जब उस हैक ड्राइवर ने कहा कि भोजन के बारे में उसका क्या ख्याल है, तो लॉयर कहता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें भी लंच करवाऊंगा। अब शहर का आदमी है तो जाहिर सी बात है किसी रेस्टोरेंट में जाके ही लंच करेगा। वेल आई हैव टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट्स। लेकिन यहाँ पे हैक ड्राइवर का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, और वो कहता है कि he does not like taking lunch in restaurants. Better he would go to his wife and he would take lunch. उससे अच्छा वो अपनी वाइफ के पास जाएगा, अपने घर जाएगा और अपनी वाइफ के हाथ के बने हुए खाने को खाना वो ज्यादा पसंद करेगा। यानी कि वो बाहर की बनी हुई चीजों को खाना ज्यादा पसंद नहीं करता, rather than eating the food of restaurants, he would like to eat homemade food. और वो कहता है कि लॉयर उसके साथ चले और उसके लिए भी खाना वो पैक करवा देगा, और जो पैसा उसको रेस्टोरेंट में लगेगा उससे कम पैसा ही वो उसको दे देगा और उससे अच्छा भोजन उसको मिल जाएगा। टेल यू व्हाट वी विल डू, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, शी वोंट चार्ज यू मोर देन हाफ ए डॉलर। और वो कहती है कि उसकी वाइफ जो है वो $50 से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी, जबकि वो रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको काफी पैसे लग जाएंगे इस चीज के लिए। And it would cost you more for a greasy meal in a restaurant, and we will go up to Waits Hill and enjoy the view while we eat. और इसके बाद वो लंच पैक करवाकर वेड हिल पे चले जाएंगे, एक पहाड़ी है जिसका नाम है वेड, और वहां पे आराम से वो दे विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दे विल टेक देयर लंच। वहां पे वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे और अपना लंच लेंगे, और इससे उसके पैसे की भी बचत हो जाएगी और रेस्टोरेंट से कहीं अच्छा भोजन उसको घर का बना हुआ भोजन मिल जाएगा। और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है।